Vaheguru, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. I always remind you that satsang is merely an environment which reminds you what you have come into this life for. Life is the greatest teacher, but satsang or shastras are an environment which tell you what do you need. Don't you want to experience peace? So that's your only goal of life. Hare Ram, isn't life itself enough of a Bhagavad Gita, enough of a Guru Granth Sahib? It is teaching you every moment through all the ups and downs. You want to experience peace. You keep fighting with the ups and downs, which you have no control over. You have no control. Some way, somehow or the other, things will sometimes look conducive, sometimes look unbearable. But through all this, you want to be at peace. Vaheguru, 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 Vaheguru. You have to live. Karmaneva adhikarastu. You have to live. And when you are living, you have to do something. And that something will have its consequences. You may be a pure vegetarian, you never hurt anyone, still there would be certain things which will go against you and you will wonder how I did not do anything wrong. Wrong, right, whatever you may keep doing. Consequences will sometimes be pleasant, sometimes be unpleasant. And you have to experience them. You can't be robotic. Suppose suddenly one day my mother left me, Mother can also leave you sometimes. She left me. So I have to experience the, endless stream of tears coming down the cheeks. But I have to happily accept it also. Happily, with a smile, accept. So there is a somebody who's smiling and there is a somebody who's crying within me. Somebody who's shedding tears and somebody who's still smiling. Both of that is me only. Hare Ram. We have had to experience so many unbearable things in life. When you willfully experience them, then you are known to be a realized one. When you are not aware that there is something which is within me, which is at peace also, then you are lost, astray one. It's not much of a difference. Even a realized one is not a robot. He does have emotions. Seemingly, he may break down also. But within him, there is always an awareness that I was always like this. As a child, also, I was like this. As an adolescent, also, I was like this. Because these are stages which the time will decide. But there is always a you which never changes. That you is always united. That is that prem, that is that ishq, that is that ik omkar.
That is Allah. That Allah who asks you, is one of the ayats in Quran Sharif where Allah asks you, Alastu birabbikum? Don't you need me? Am I not your God? Don't you love me? Alastu, don't you? Am I not your ultimate need? Alastu be rabbikum. Am I not your Lord? Am I not all that you need? And the same ayat says, Kalu bala, Kalu bala. Bala means Bala. We think Bala means ravishingly, devastatingly beautiful. But Bala means, yes, I am. I am yours. I am. This is one of the ayats of Quran Sharif. जिनी पछाता हुक्म तिन का दिन रोना. ये हुक्म क्या है? हुक्म समझते हैं हम कि ऑर्डर होगा कोई. We don't like orders, none of us. From within ourselves, we don't like to be ordered. But well, he's not an order, it's a covenant, it's a promise that when we said, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों. ये किस लिए अजनबी बने थे? क्यों सेपरेट हुए थे? क्योंकि चलो, लेट्स नाउ taste each other, because the tongue cannot taste itself. The tongue is, let's say, God. Tongue has to become a gulab jamun. Tongue alone becomes a gulab jamun, then it tastes itself. And so the creation has come about. How is the creation come about? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दो. Radha and Krishna or Shiva and Shakti are so much one that they can't taste each other. They always one. How can they taste each other? So they separate. When they separate, now begins that antaral, that antarai, that leela, that play. Now, in that play, all pleasant and unpleasant things happen. In that play, vyadhi, styan, sanshay, pramad, alasya, avirati, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये बहुत सारे अंतराय हैं, विक्षेप हैं. ये सब होते हैं. इनके मीनिंग समझिएगा तो इन वेरी शॉर्ट टॉक आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग. वेल, ये सब कुछ होता है. दुख भी होता है, दौर्मनस्य भी होता है, दौर्मनस्य बोर्डम भी होता है, दुख भी होता है, श्वास प्रश्वास भी होते हैं, सांस लेना छोड़ना. क्रिएशन बनी ऐसे है. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. तो क्रिएशन बन जाती है. और उस क्रिएशन में हम एक दूसरे को वापस ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं. तो ढूंढने को टेस्ट बोलते हैं. टेस्ट करते रहते हैं. और फिर एक बार फिर एक हो जाते हैं. एक होके फिर दो हो जाते हैं. दो होके फिर एक हो जाते हैं. ये चलता ही रहता है. क्रिएशन इज एज इटर्नल एंड सेम्पिटर्नल, शाश्वत एंड नित्य, एज आई एम. आई मीन्स वननेस. जितना शाश्वत और नित्य और सत्य मैं हूं, उतनी ही शाश्वत और नित्य और सत्य ये क्रिएशन है. क्योंकि क्रिएशन भी तो ऐसी की ऐसी है हमेशा से ही. बिल्डिंग्स की शक्लें बदल गई हैं, व्हीकल्स बदल गए होंगे, वॉर पैटर्न बदल गया होगा, मगर जिंदगी तो हमेशा ही ऐसे ही रही है. और आदि है, अनादि है. जितना आदि और अनादि अल्लाह स्वयं है, उतनी ही आदि और अनादि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, होशी भी सच. जितना सत्य भगवान स्वयं है, उतनी ही सत्य उसकी सृष्टि है, उसका स्वभाव है, उसकी नेचर. और नेचर चाहती क्या है? वापस एक हो जाए. और एक क्या चाहता है? वापस दो हो जाए.
क्योंकि जब हम एक हैं तो बोर हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। जब दोनों एक ही बन जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, दिल लगना बंद हो जाएगा। चलो फिर एक बार फिर दो हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। ये चलता ही रहा है, चलता ही रहेगा। हरे कृष्णा हरे राम। जिन्हीं पछाता हुक्म तिनका देना रोवना। हुक्म क्या है, सत्संग क्या करता है? आपको हुक्म याद कराता है। हुक्म ऑर्डर नहीं होता। हुक्म इस एक प्रॉमिस किया था हमने जब हम अलग हुए थे। एक प्रॉमिस किया था। अलग क्यों हुए थे? सो दैट वी कैन टेस्ट ईच अदर बैक अगेन। टेस्ट ईच अदर इन एवरी विच वे। उस टेस्ट में विरह भी होगी, उसमें मिलन भी होगा, उसमें तकरार भी होंगे, उसमें इकरार भी होंगे, इनकार भी होगा, इजहार भी होगा, उसमें सब टेस्ट होंगे। इसीलिए उसको श्रृंगार रस बोलते, कांत रस बोलते। कांत रस, कांत रस। मतलब कांत का मतलब होता है हम कभी अलग तो होए नहीं, हो सकते भी नहीं। वो कांत होता है। कांत मीन्स हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। चलिए एक्टिंग करते हैं कि हम अलग हो गए। चलिए फिर हम एक होने की कोशिश करते हैं वापस। ये जो श्रृंगार रस बन जाता है। श्रृंगार रस का मतलब है उसके अंदर सारे ही टेस्ट आ जाते हैं। दैट्स वाई कांत मीन्स हस्बैंड वाइफ। कांत एंड कांता। कांति मीन्स उसमें से फिर आभा प्रभा विभा निकलती है। नो, प्रभा क्या होता है? जैसे सूर्य में से जो लाइट आती है उसको प्रभा बोलते हैं। आभा क्या होती है? जो सूर्य के अराउंड एक हैलो दिखता है, उसको आभा। और विभा क्या होती है? जो कि जिंदगी सब कुछ हम सूर्य का ही तो रूप है, नहीं तो हम दिखेंगे कैसे? हम वो सनलाइट ही तो हैं, नहीं तो हम दिखेंगे ही नहीं। सो व्हेन in individual parts sunlight is visible in a particular differentiated way, it's called vibha. So वही प्रभा है, वही आभा है, वही विभा है। वही जो एक सेपरेशन थी, उसी के अंदर ही तो सारा का सारा मिलन बैठा हुआ है। क्योंकि मिलन तो कभी अलग हुआ ही नहीं ना। कांत का मतलब ही है कांत भाव, कि हम कभी अलग सचमुच तो हो नहीं सकते, मगर ऊपर ऊपर से दिखते हैं कि चलो अलग हो गए, फिर हम एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम बचपन में भी तो चोर सिपाही खेलते ही रहे हैं। उसमें कोई चोर नहीं होता, कोई सिपाही नहीं होता। वो हाइड एंड सीक गेम है बस। ये जिंदगी पूरी की पूरी एक हाइड एंड सीक गेम है। इसके अंदर जो बीमारियां आती हैं, जो भी हार जीत होती है, कहते हैं ना वो सब आपके भले के लिए है। भला क्या है? जो भी तकलीफें सहते हो, जो रोते रहते हो, किस लिए? भले के लिए। भला कैसे हो सकता है मेरा? इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, भला कैसे हो सकता है? भला क्या है? आपको याद कराना कि तुम अलग हुए क्यों थे। कविनेंट क्या है, प्रॉमिस क्या है, ओरिजिनल प्रॉमिस क्या है? कि हम, चलो हम एक बार फिर से अजनबी हो जाएं, ताकि हम वापस फिर जब विवाह दोबारा करेंगे तो बड़े फ्रेश लगेंगे, न्यूली वेड्स लगेंगे। Isn't it? हर बार जब मिलेंगे ऐसे लगेगा नित्य नूतन। हर वक्त लगेगा कि अरे एवर फ्रेश। अब कभी अलग ही ना होंगे तो फिर फ्रेश कैसे लगेंगे? अब जब अगली बार मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो लगेगा पहली बार देखा। वो कितनी अट्रैक्शन होगी उसमें। इसलिए हम अलग भी होते रहते हैं, जुड़ते भी रहते हैं, अलग होते। ये जिंदगी है। यही सबसे पहले, अब ये जो आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है कुरान शरीफ की, ऐसे ख्याल आ गया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा सब कुछ नहीं हूं? तुम मेरी हो, मेरे सिवा किसी की नहीं। खाती हो कसम? एंड शी सेज यस यस। मुझे याद आ गया। इजंट इट? सो उसी को पोएट ने ऐसे बोल दिया, तुम मेरी हो, मेरे सिवा किसी की नहीं। खाती हो कसम? एंड शी सेज यस 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 यस। कालू भला। कालू मीन्स all the souls together, they said, yes, definitely, yes, we belong to you. जब भी कृष्ण सृष्टि बनी थी,
भगवान ने अपने अंदर से सोल्स को अलग कर दिया। फिर सोल से पूछा, व्हाट डू यू वांट, एम आई नॉट योर्स, डोंट यू वांट टू कम बैक टू मी? दे सेड यस, यस, व्हाई नॉट, वी वांट टू कम बैक टू यू थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? चित्त। और चित्त के बियॉन्ड कौन है? आप ही तो हैं। चित्त कौन है? आप ही तो हैं। चित्त रोएगा और आप उस टाइम भी जानते होंगे कि हम कभी सचमुच तो अलग हो नहीं सकते। कांत भाव है ना। हरे राम, हरे कृष्णा। कोई एक चोजन वन नहीं है, सभी की सभी सोल्स जो हैं चोजन वंस। हम सभी चोजन वंस। हरे राम। किसी को याद आ जाता है, किसी को याद करवाना पड़ता है दैट यू आर द चोजन वन। उसको याद करवाना पड़ता है। किसी को अपने आप से याद आ जाता है। जिसको अपने आप से याद आ जाता है, बस वो बला के जैसे चमकना शुरू हो जाता है। परी हो, भला हो, क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा। फिर आप जाग जाते हो। आपके यहाँ पे भांति होती, कपाल भांति। जोहरा जबी बोलते हैं उसको, जोहरा जबी। तुम्हें मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। सो ये कृष्ण राधा को बहुत बोल रहे हैं, "ए मेरी जोहरा जबी"। जोहरा जबी होती, जबी होता है ये माथा। जोहरा में यहां से लाइट आती, आप कोहिनूर हो जाते, नूर का पर्वत हो जाते। हरे राम। जब आपको याद आ जाता, सत्संग इज जस्ट टू रिमाइंड यू, तुम मेरी हो, मेरे सिवा किसी की नहीं। जस्ट ए रिमाइंडर। हरे राम। वाहिगुरु। हरे कृष्णा। हरे राम, हरे राम, हरे राम। वाहिगुरु।